Assalamu alaikum, my dear students. Today we are recording the lecture for function point analysis for the course of software engineering economics. You already know that we always start with motivational quotation, keep us running. The quotation of today's are: power begins from within, ideas are generated in the unconsciousness. If you focus deeply on a subject, you understand it better and better, and more layers of it are revealed to you. Students, पावर बिगिनस फ्रॉम विद इन। आप लोग जानते हो कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी हुई है। आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करो, आइडियाज़ जनरेट करो। आइडियाज़ आर ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस एंड कीप डीपली फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स. You understand more and more, you will understand if you read more and more, you will understand more and more, and more layers of a subject will reveal to you. Let's start. The outline of today's lecture is: what is function point analysis, objective of function point analysis, measurement, benefits, components of function point analysis, overview, example and limitations of function point analysis, what is feature points, and summary of the lecture. We will discuss two examples for understanding of function point analysis. Abbreviated as function point analysis, abbreviated at function point analysis. Function point analysis is one of the most preferred and widely used estimation techniques used in software engineering. The function size of the product is measured in terms of the function point. It is a standard of measurement to measure the software application. Function point metrics developed by Alan Albrecht of IBM were first published in 1979. In 1984, the International Function Point Group Users Group IFPUG was set up to clarify the rules, set standards, and promote their use and evaluation. Objectives of function point measurements are: measure functionality that the user requests and receives, measure software development and maintenance independently of technology used for implementation. Benefits of function point analysis: organizations can apply function point analysis, a tool to determine the size of the purchased application package, a tool to help users determine the benefit of an application, a tool to measure the units of software product to support quality and productivity analysis, a vehicle to estimate cost and resources required for the software development, a normalization factor for software comparisons. What are the components of software function point analysis? यूज़र्स हैं, ILF है, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं, एंड EIF है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स हैं. This is the boundary of the application system. Input from the users goes into IFL, internal logical files, and output is generated from the internal logical files, and user can query the interface logical files. जो चीज़ यूज़र बाउंड्री से इंटर हो रही है, सिस्टम बाउंड्री में इनपुट कहलाती है, और जो सिस्टम बाउंड्री से आउट हो रही है और यूज़र बाउंड्री की तरफ जा रही है, वो आउटपुट कहलाती है. एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स आर एक्सटर्नल remote databases, could be remote databases, or ILF could be stored databases. These are the 5 components of function point analysis. Internal logical files, जो मैंने आपको पिछली डायग्राम में बताए. यूज़र आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा. लॉजिकल रिलेटेड डेटा आप लोग जानते हो कि टेबल्स में स्टोर होता है. एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, यूज़र आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ logical related data are controlled information referenced by applications but maintained within the boundary of internal logical file. External, the boundary of maintained within the boundary of another application. ठीक है, जो आपका कोई रिमोट एप्लीकेशन है या रिमोट डेटाबेस है. एक्सटर्नल इनपुट, EI process data or control information that comes from outside the application's boundary. External output,
EO is an elementary process that generates data or control information send outside the application's boundary. External queries हैं an elementary process made up of an input output combinations that result in data retrieval. आपको पता है कि जब आप किसी भी एक डेटाबेस को क्यूरी करते हैं तो वो आपको आफ्टर सम कंप्यूटेशंस कोई रिजल्ट्स रिट्रीव करके डेटाबेस से यूज़र बाउंड्री में जाता है. ये एक और एग्जांपल टाइप ऑफ फंक्शन पॉइंट एट्रीब्यूट्स हैं. नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, कोई इनपुट स्क्रीन्स हैं. नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट स्क्रीन्स हैं. रिपोर्ट्स हैं, कोई रिपोर्ट्स आउटपुट स्क्रीन्स. एक्सटर्नल क्यूरीज में कोई प्रॉम्प्ट्स हैं, इंटरप्ट्स हैं. फिर इंटरनल लॉजिकल फाइल डेटाबेसेस हैं, डायरेक्टरीज हैं. और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स हैं, वो कोई शेयर्ड डेटाबेस हैं, शेयर्ड रूटीन्स हैं जो रिमोटली एक्सेसिबल हैं. Five function types and then ranked according to their complexity, low, average or high, using a set of perspective standards. Organization that use function point methods develop criteria for determining whether a particular entry is low, average or high. Nevertheless, the determination of complexity is somewhat subjective. ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप करती हैं कि किसी भी एक चीज़ को लो, एवरेज या हाई किस तरह से कहना है. ये एक सब्जेक्टिव मेजर है. आफ्टर क्लासिफाइंग ईच ऑफ द 5 फंक्शन टाइप्स, द यूज़र फंक्शन पॉइंट्स, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट इज़ कंप्यूटेड यूजिंग प्री डिफाइंड वेट्स फॉर ईच फंक्शन टाइप. आप अगर इसमें देखो तो जितने भी आपकी कैटेगरीज़ हैं, 5 कैटेगरीज़ हैं, उनको 3 रैंक्स में डिवाइड किया जाता है, लो, एवरेज और हाई. और हर एक के पहले से डिफाइंड वेट्स हैं. जो इनपुट आती है उस इनपुट के मुताबिक उसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके कम्प्लेक्सिटीज़ को फाइंड किया जाता है. और अल्टीमेटली इनको अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट हो जाता है. अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स को हम एक एडजस्टेड वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. वो पहले से प्री डिफाइंड 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रैंक्ड हैं 0 से लेकर 5 तक. 0 रैंक करता है नो इन्फ्लुएंस को, 1 इंसिडेंटल, मॉडरेट, एवरेज, सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल रिस्पेक्टिवली. उनकी एक सब्जेक्टिव मेजर हर एक की वैल्यू जो 0 से लेकर 5 तक हो सकती है. 14 फैक्टर्स की वो यहाँ लिखे जाते हैं और उनको एडअप किया जाता है. एडअप करने के बाद एक फार्मूला है, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड होता है जो प्रीवियस टेबल से आपको कंप्यूट होके आता है. वो यहाँ पे आएगा, वो 0.01 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 0.65 में से माइनस करके एक वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला जाता है और अनएडजस्टेड फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई किया जाता है. इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स को की वैल्यू लो, एवरेज और हाई रैंक करने के लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है जो डेटा एलिमेंट टाइप्स और रेफरेंस एलिमेंट टाइप्स. अगर रेफरेंस एलिमेंट टाइप्स 1 to 19 डेटा एलिमेंट टाइप्स के अंदर लाई करें तो जो रैंक है वो लो होगा. इसी तरह से 20 से 50 DETs हों तो लो होगा, और अगर 51 और मोर DETs हों तो हाई होगा. DETs का मतलब डेटा एलिमेंट्स हैं, आप उसे टेबल की एट्रीब्यूट वैल्यू कह सकते हैं. और REF रेफरेंस एलिमेंट टाइप्स आप टेबल को कह सकते हैं. अगर 2 से 5 रेफरेंस एलिमेंट टाइप्स हों, डेटा एलिमेंट्स 1 to 19 हों तो लो, 20 to 50 हों तो एवरेज, 51 और मोर हों तो हाई. इसी तरह से 6 और मोर RETs हों, 1 to 19 हों तो एवरेज, 20 to 50 हों तो हाई, 51 मोर हों तो हाई. इसी तरह से एक रेफरेंस टेबल है, वो एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल क्यूरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. बिल्कुल इसी तरह से अगर फाइल टाइप रेफरेंस 0 और 1 हों और 5 DETs हों तो लो, 6 to 19 DETs हों तो लो, 20 और मोर हों तो एवरेज. इसी तरह से 2 to 3, 4 और मोर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रीवियस रेफरेंस टेबल में फाइंड करना आप लोगों को सिखाया.
एक एग्जांपल को देखते हैं। फंक्शन टाइप्स, अगर एस्टिमेटेड काउंट 24 हो तो वो एवरेज 4 से एवरेज की कैटेगरी में फॉल करेगा। देखें ये 24 हैं और एक ही रेफरेंस फाइल है तो एवरेज के वेट 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 96। इसी तरह से एक्सटर्नल आउटपुट है 16, एवरेज का वेट 5, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80। एक्सटर्नल क्यूरीज 22 हैं, वो एवरेज की कैटेगरी में फॉल करेंगी, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88। हम फंक्शन पॉइंट्स को काउंट करते हैं तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट का काउंट 318 आ जाता है। अब हम वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर इसका फाइंड करते हैं। वो 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वैल्यू 0 to 5 तक लाई करती हैं। ये सब्जेक्टिव है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स इनकी वैल्यू 0 to 5 तक कोई भी एक वैल्यू देते हैं कि वो चीज़ हमारे सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना इन्फ्लुएंस कर रही है। तो डेटा कम्युनिकेशन 2 इन्फ्लुएंस कर रही है। इट मीन्स अगर 2 को देखो तो ये मॉडरेट है कि हमारी एप्लीकेशन में इसका अफेक्ट मॉडरेट है। इस तरह से 0 मीन नो इन्फ्लुएंस, 2 एंड 4 मीन सिग्निफिकेंट। 4 यहाँ पे आ रहा है, ट्रांजैक्शन रेट इज़ सिग्निफिकेंट। इस तरह से हम इन सारों को जब ऐड अप करते हैं तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। अब इसको कंप्यूट किस तरह से करते हैं, ये 52 इंटू 0.11 प्लस 0.65, ये आपका वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर 1.17 आ गया। ये हमने इस तरह से मालूम किया है। ये जो हमारे TDIs हैं जो हमने यहाँ कैलकुलेट किए हैं, ये यहाँ आ गए, इनको हमने मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर 1.17 निकाल लिया। अब 1.17 हमारा 318 से मल्टीप्लाई हुआ है, 318 से मल्टीप्लाई हुआ है। 318 हमारे यहाँ से जो फंक्शन पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किए वो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है तो फंक्शन पॉइंट्स आ गए। तो इस एप्लीकेशन के फंक्शन पॉइंट्स 372 बन जाते हैं। आई होप कि आपको ये कैलकुलेट करने की समझ आ गई हो। अगर नहीं आई तो ऑनलाइन सेशन में हम इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो एक फीचर पॉइंट, फंक्शन पॉइंट्स के बाद एक फीचर पॉइंट होता है। इसे सुपर सेट ऑफ फंक्शन पॉइंट्स suitable for real-time process control and embedded software applications tend to have high algorithmic complexity. Based on the function point measure, software may other metrics can be computed such as errors per function point, dollars per function point, defects per function point, page of documentation per function point, error per function point, productivity function points divided by person months and dollars per page of documentation. एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे हम कैलकुलेट करेंगे बाकी मेजर्स की। तो हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है जिसमें यूज़र इनपुट्स 24 हैं, आउटपुट्स 46 हैं, 8 इंक्वायरीज़ हैं, 4 फाइल्स हैं, इंटरनल फाइल्स, लॉजिकल फाइल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरफेसेस 2 हैं। एफर्ट हमें 36.9% मंथ्स गिवन है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स 265 हैं और यूज़र डॉक्यूमेंट्स 122 पेजेस हैं और कॉस्ट हमारी 7,744 पर मंथ्स है। कम्प्लेक्सिटीज़ हमें गिवन है, प्रोसेसिंग कम्प्लेक्सिटीज़ गिवन है। देखें कि हम जो फंक्शन पॉइंट्स कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरीज से काउंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके रैंक के मुताबिक जो एवरेज लो और हाई हैं, लो एवरेज और हाई है, उनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक फ़िगर आती है जो हमारे पास काउंट आता है 378। उसके बाद हमारे पास सम ऑफ कम्प्लेक्सिटीज़ है जो 1 to 14 जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये 4103354433
2 2 4 5। इन सारों को हम ऐड अप करते हैं। ऐड अप करने के बाद फार्मूला में पुट इन करते हैं। ये हमारी 43 बनती हैं। इसके मुताबिक हम अपना एक वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करते हैं। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर हमारा 1.08 आया है। 378 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो अनएडजस्टेड फैक्टर है। अनएडजस्टेड फैक्टर और वैल्यू एडिड फैक्टर जब हमारे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो फंक्शन पॉइंट्स निकल आते हैं। इस एग्जांपल के मुताबिक हमारे फंक्शन पॉइंट्स 408 बनते हैं, जो फंक्शन पॉइंट्स है। अब इससे हम प्रोडक्टिविटी को फाइंड करते हैं। फंक्शन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय एफर्ट हमें गिवन है। फंक्शन पॉइंट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो हमारी 11.1 आ गई है। बाकी फार्मूलाज हैं। टोटल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पर यूज़र डॉक्यूमेंट्स हमें गिवन है, तो वो 387 पेजेस हमारी टोटल डॉक्यूमेंटेशन बनेगी। डॉक्यूमेंटेशन पेजेस डिवाइडेड बाय फंक्शन पॉइंट्स करते हैं तो वो हमारी टोटल डॉक्यूमेंटेशन की एफर्ट निकल आई। और कॉस्ट पर फंक्शन हमें गिवन है 11.1 हमारे फंक्शन पॉइंट्स हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी है, उससे हमें टोटल कॉस्ट पर फंक्शन निकल आई, जो हमारी 7000 है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हम अपने लेक्चर को हमेशा एक अच्छे से शेयर पे कंप्लीट करते हैं। आज के हमारे शायर मोहसिन नकवी साहब हैं। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर। थैंक यू वेरी मच। डू इट योरसेल्फ। आप जब तक अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप हैंड ऑन नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।